নমস্কাৰ। সো আজি আমি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ এটা স্পেশাল চেপ্টাৰৰ আমি কিছুমান স্পেসিফিক টপিক লৈ পেলাই ডিসকাশন কৰিম। ক্লিয়াৰ? আমি থিওৰিটিক্যাল কনসেপ্টবিলাক অলমোস্ট জানো, হয়নে নহয়? আমাৰ এক্সাম চলি আছে, সো তাৰ লগত আমাৰ নিউমাৰিক্যাল প্ৰবলেমছখিনি আমি অলপ বুজিব লগা আছে। যেহেতু থিওৰিটিক্যাল পাৰ্ট বেছি আহে, নিউমাৰিক্যাল কম আহে, কিন্তু তোমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিউমাৰিক্যাল সামখিনি যি দুটা তিনিটা সাম আহিব, সেই সামখিনি যদি তুমি নকৰা তেতিয়াহ'লে তুমি 95%ৰ ওপৰত পোৱাটো অলপ টান হৈ যায়, হয়নে নহয়? সো ভাল ষ্টুডেণ্টে নিউমাৰিক্যাল সামখিনি কেতিয়াও নেৰে। সো তোমালোক মই আশা কৰিম যে নিউমাৰিক্যাল সামখিনি কৰিব যত্ন কৰিবা। ক্লিয়াৰ? আৰু সেই নিউমাৰিক্যাল সামখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান স্পেচিফিক ফৰ্মুলা আমি জানিব লাগিব। ক্লিয়াৰ? আৰু সেই ফৰ্মুলাখিনি জানিলেহে তুমি টেকনিক্যালি তুমি নিউমাৰিক্যাল সামখিনি কৰিব পাৰিবা। ক্লিয়াৰ? আমি অলৰেডি বাজেট চেপ্টাৰটো পঢ়িছোঁ, অপেন ইকনমি পঢ়িছোঁ, হয়নে নহয়? সো বাজেট আৰু অপেন ইকনমিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান নিউমাৰিক্যাল সাম আমি কৰিব যত্ন কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি সেই সামখিনিৰ লগত ৰিলেট হৈ থকা কিছুমান ফৰ্মুলা আমি জানিব লাগিব। সো আজি স্পেচিফিকেলি আমি সেই ফৰ্মুলাখিনি জানিম, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি নিউমাৰিক্যাল সাম কৰিম। প্ৰথম তোমাৰ কাম হৈছে বাজেটৰ ফৰ্মুলাখিনি জানা আৰু অপেন ইকনমিৰ ফৰ্মুলাখিনি জানা। সো বাজেট আৰু অপেন ইকনমিৰ লগত থকা নিউমাৰিক্যাল সামখিনিৰ যিখিনি ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি আমি আজি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি সেই ফৰ্মুলাখিনি ভালকৈ এবাৰ বলা ৰিভিজন কৰোঁ। ওকে? গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট এণ্ড অপেন ইকনমি, ইয়াত মই লিখিছোঁ চোৱা ফৰ্মুলা এট এ গ্লেন্স। ওকে? আৰু এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয়, তুমি জানিব লাগিব দেই, ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হ'ব। সো এই ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে ভালকৈ চাবা। আজি তোমালোকৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ এক্সাম চাগে চলি আছে, সো সেই এক্সাম অলমোষ্ট শেষ হ'ব। তাৰপিছত ইকনমিক্সৰ আগত তোমালোকে বহুত বন্ধ পাইছা, সো সেই বন্ধটো কামত ভালকৈ আমি লগাম। ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাখিনি কি আছিলে, তুমি বাজেটৰ লগত ৰিলেটেড সেইখিনি ভালকৈ চোৱা। আমি জানো বাজেট চেপ্টাৰৰ দুটা কম্পনেণ্ট আছিলে, ৰেভিনিউ বাজেট, কেপিটেল বাজেট, হয়নে নহয়? তাৰ লগত ডেফিচিট কনচেপ্ট তিনিটা আছিলে, ৰেভিনিউ ডেফিচিট, ফিস্কেল ডেফিচিট, প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট। সেইখিনিৰ উপৰিও বাজেটৰ আৰু কিছুমান স্পেচিফিক ফৰ্মুলা আছে যিখিনি আমি এজ ইউজুৱেল কিতাপত নাপাওঁ। সো সেইখিনি তোমাক ভালকৈ চাবা। মই ফৰ্মুলাখিনি দি দিছোঁ, সো ভালকৈ চাবা। ওকে? প্ৰথম কনচেপ্টটো হৈছে ছাপ'জ বাজেট এখনত যদি মই নাম্বাৰ 1টো এনেকৈ লিখি দি আছোঁ, বাজেটত যদি অলৱেজ বেলেঞ্চড বাজেট হয় দেই, মই একদম তন্নকৈ বুজাই আছোঁ, বেলেঞ্চড বাজেট হয়, বেলেঞ্চড বাজেট। ক্লিয়াৰ? আৰু বেলেঞ্চ বাজেটত অলৱেজ আমি জানো কি হ'ব লাগিব, বেলেঞ্চ বাজেটত তোমাৰ ৰিচিপ্টছ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব লাগিব, এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ? ৰিচিপ্টছ ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ? আৰু ঠিক তেনেকৈ সাৰপ্লাছ বাজেটটোত যদি সাৰপ্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে সাৰপ্লাছ বাজেটত অলৱেজ ৰিচিপ্টছ অলৱেজ কি হয়, গ্ৰেটাৰ দেন এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব। ক্লিয়াৰ? গ্ৰেটাৰ দেন एक्सपेंडिचर होगा। थर्ड, जो डेफिसिट बजट होता है ना, डेफिसिट बजट में ऑलवेज क्या होता है, डेफिसिट बजट में ऑलवेज क्या होता है, रिसिप्ट्स ऑलवेज लेस देन व्हाट, एक्सपेंडिचर। मतलब बजट में डेफिसिट होगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रिसिप्ट्स कम आएगा। सरप्लस बजट में रिसिप्ट ज़्यादा आएगा, एक्सपेंडिचर कम आएगा। बैलेंस बजट में रिसिप्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आएगा। क्लियर? ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल सम में अगर बैलेंस बजट निकालना है, अगर सरप्लस बजट निकालना है, अगर डेफिसिट बजट निकालना है, तो तुमको दो चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है? एक तो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक तो हो गया टैक्स रेवेन्यू। मतलब तुमको दो कॉन्सेप्ट चाहिए, एक तो जी चाहिए, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए, और एक तो चाहिए
टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है ना एज ए रेवेन्यू, वो चीज़ चाहिए। ये दो चीज़ चाहिए, एक तो टैक्स, अनदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों का डेविएशन के ऊपर डिपेंड करेगा बजट में सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। मतलब तुमको जी एंड टी का फर्क देखना है, ठीक है। तो जी एंड टी का फर्क का मतलब ये हो गया, मान लो बजट में रिसीव ज़्यादा हुआ, रिसीव इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब रिसीव का मतलब टैक्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब टी इज इक्वल जी होगा। टी मतलब टैक्स रिवेन्यू एज ए रिसीव्स एंड जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर। और इधर तुम्हारा हो जाएगा रिसीव मतलब टैक्स ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। फिर इधर तुम्हारा हो जाएगा रिसीव्स कम मतलब टैक्स रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा। मतलब टी रिलेटेड टू रिसीव्स, जी रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, रिसीव्स मीन्स नथिंग बट टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? तो ये जो टी एंड जी वाला दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एलिमेंट बोल सकते हो, ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कंट्री का बजट में सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। क्लियर? तो मान लो तुम ऑलवेज देखना बजट में अगर सरप्लस, मान लो बजट में सरप्लस बजट आ गया, ठीक है। तो सरप्लस बजट आ गया, इसका मतलब तुम देखो टी माइनस जी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इसका मतलब ये होगा टी रख लो, जी उधर ले जाओ, टी ग्रेटर देन जी हो जाएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सरप्लस बजट। जस्ट उस हिसाब से डेफिसिट बजट अगर देखो, तो डेफिसिट बजट में क्या होगा, डेफिसिट बजट में टी माइनस जी लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये होगा टी कम होगा, जी ज़्यादा होगा, मतलब तब बजट में माइनस कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो टी एंड जी का जो फर्क है ना, वो चीज़ देखो तुम। मतलब बजट में सरप्लस या डेफिसिट, उसके लिए तुम टी का वैल्यू निकालो और जी का वैल्यू निकालो, और टी एंड जी का वैल्यू का डेविएशन देख लो, तो तुमको पता चल जाएगा बजट में सरप्लस है या डेफिसिट है। और बैलेंस बजट, अगर बैलेंस बजट होगा तो टी इज इक्वल टू जी होगा, अगर सरप्लस बजट होगा तो टी ग्रेटर देन जी होगा, अगर डेफिसिट बजट होगा तो टी लेस देन जी होगा। मतलब टैक्स रिवेन्यू and government budget. T means tax revenue of the government and G means government expenditure. Clear? तो ये तीन चीज हो गया बजट रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज तुमको दिखना है। तो इसका मतलब ये हो गया फाइनली बैलेंस बजट में, मैं फिर से लिख देता हूँ, बैलेंस बजट में फाइनली तुमको दिखना है T माइनस जी इज इक्वल 0। इसका मतलब T इज इक्वल जी, ये चीज़ हो गया। सरप्लस बजट में ये बजट आ गया, सरप्लस बजट में होगा T माइनस जी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा T, जी को उधर ले जाओ, T ग्रेटर देन जी होगा। क्लियर? ये चीज़ हो गया। डेफिसिट बजट में न्यूमेरिकल सम में तुमको ये दिखना है, डेफिसिट बजट में तुमको देखना है टी माइनस जी लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया टी, जी को उधर ले जाओ, लेस देन जी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला रिलेटेड टू बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ऑलवेज रिमेंबर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टी वाला चीज़ देखो और जी वाला चीज़ देखो, दोनों का डेविएशन में कौन सा ज़्यादा है। अगर टी ज़्यादा है तो सरप्लस बजट, अगर जी ज़्यादा होगा तो डेफिसिट बजट, और टी एंड जी अगर इक्वल होगा देन डेफिनेटली इट इज़ बैलेंस बजट। तो तीन फॉर्मूला हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, नंबर 4 फॉर्मूला आएगा टैक्स मल्टीप्लायर। ओके, सो टैक्स मल्टीप्लायर, ये सब फॉर्मूला अच्छे से ध्यान दो, ठीक है।
टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब हो गया, मल्टीप्लायर का सिंबॉलिक फॉर्म के एंड टैक्स मल्टीप्लायर नथिंग बट टी। ओके, सो टैक्स मल्टीप्लायर, के मीन्स मल्टीप्लायर, टी मतलब टैक्स। इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। ओके, मतलब टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से गवर्नमेंट का इनकम का कितना इकोनॉमी का चेंज होता है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी नथिंग बट माइनस सी बाई 1 माइनस सी, ये फॉर्मूला आएगा। इधर सी का मतलब हो जाएगा MPC। ओके, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। So tax multiplier nothing but delta y by delta t nothing but minus c by 1 minus c, and c here nothing but MPC. Number 5th formula आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा के जी, के मतलब मल्टीप्लायर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। दिस इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी। क्लियर? सो रेट ऑफ चेंज इन इनकम इन एन इकोनॉमी ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? एंड दिस इज नथिंग बट 1 बाई 1 माइनस सी, एंड सी मीन्स व्हाट? MPC. So tax multiplier nothing but KT, and KT nothing but delta y by delta t, and nothing but minus c by 1 minus c. Government expenditure multiplier nothing but KG, and that is nothing but delta y by delta g, and this is nothing but 1 by 1 minus c, and c means here MPC. Clear? तो ये हो गया 5th नंबर फॉर्मूला। 6th नंबर फॉर्मूला आएगा, 6th नंबर फॉर्मूला आएगा ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। ओके, सो ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। ओके, इसका फॉर्मूला आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला आएगा, मैं नीचे लिखता हूँ 1 बाई 1 माइनस सी प्लस एम। इसका मतलब 1 माइनस सी मतलब सी का मतलब MPC, एंड M मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, M का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ये चीज़ आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। इसका मतलब MPM, इसका सिंबॉलिक फॉर्म स्मॉल m। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट नथिंग बट स्मॉल m। सो तो हो गया कितना? 6 फॉर्मूला हो गया, टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, एंड ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर नथिंग बट 1 बाई 1 माइनस सी प्लस m। क्लियर? और 2-3 चीज़ जानना है तुमको, जैसे मान लो ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में, ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में, क्लियर? ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में तुमको अगर सरप्लस ट्रेड, क्या? सरप्लस ट्रेड बैलेंस। क्लियर? सरप्लस ट्रेड बैलेंस। और एक तो हो गया डेफिसिट ट्रेड बैलेंस। ये 2 चीज़ भी देखना है, ठीक है? ये दोनों के लिए तुमको X और M, ये 2 चीज़ देखना है, कैपिटल X कैपिटल M। X मतलब हो गया एक्सपोर्ट, कैपिटल M मतलब इम्पोर्ट। क्लियर? ये 2 चीज़। तो सरप्लस ट्रेड बैलेंस अगर होगा ना, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेविएशन देखना है। जैसे बजट में G एंड T देखना है, T का मतलब टैक्स रेवेन्यू, G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जस्ट लाइक ओपन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में तुमको नेट एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट में, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में तुमको देखना है एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, एंड नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट में देखना है एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। मतलब
सरप्लस ट्रेड बैलेंस में एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा आएगा, इंपोर्ट वैल्यू कम आएगा। डेफिसिट ट्रेड बैलेंस में तुमको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। क्लियर? और बैलेंस में अगर बैलेंस ट्रेड देखोगे ना, इक्विलिब्रियम ट्रेड और बैलेंस ट्रेड अगर देखोगे तो इसका मतलब होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल जीरो। इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, मतलब बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम। सो ये तीन चीज़ भी देखना है। सरप्लस ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेस ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। डेफिसिट ट्रेड बैलेंस में देखना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेस देन जीरो, मतलब एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। बैलेंस ट्रेड में देखना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल जीरो, मतलब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। क्लियर? तो ये इतना ही तुम्हारा फॉर्मूला दोनों में, बजट और ओपन इकोनॉमी में तुम फॉलो कर लो तो तुम्हारा न्यूमेरिकल सम में कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो फाइनली एक बार मैं सब फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूँ। हाँ, ठीक है? तो ये नंबर 1 हो गया तुम्हारा क्या, बजट, मतलब बैलेंस बजट, बैलेंस्ड बजट। ओके, सो बैलेंस बजट में ऑलवेज क्या होगा, जी माइनस टी, टी माइनस जी लिख देता है। ठीक है? टी माइनस जी इज इक्वल जीरो। ठीक है? नंबर 2 सरप्लस, सरप्लस बजट में, सरप्लस बजट में तुमको दिखना है टी माइनस जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है? नंबर 3 डेफिसिट, डेफिसिट, डेफिसिट बजट में तुमको देखना है टी माइनस जी लेस देन जीरो। ठीक है? नंबर 4, नंबर 4 हो जाएगा टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर नथिंग बट के टी एंड के टी नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट 1 बाई 1 माइनस सी, इधर माइनस सी होगा, माइनस सी। ठीक है? हो गया। नंबर 5 होगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में शॉर्ट करके लिख दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में तुमको आ जाएगा के जी इज इक्वल डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल 1 बाई 1 माइनस सी। ठीक है ना? रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस बजट नथिंग बट टी माइनस जी इज इक्वल जीरो, मतलब टी इज इक्वल जी। सरप्लस बजट में टी माइनस जी ग्रेटर देन जीरो, मतलब टी ग्रेटर देन जी। डेफिसिट बजट में टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस देन जीरो, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, टैक्स कम होगा। टैक्स मल्टीप्लायर नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी नथिंग बट माइनस सी बाई 1 माइनस सी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल 1 बाई 1 माइनस सी। क्लियर? हो गया। फिर ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर में तुमको दिखना है 1 बाई 1 माइनस सी प्लस एम। सी मीन्स एमपीसी, स्मॉल एम मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। क्लियर? गया। फिर तुमको देखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कंसेप्ट में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना? फिर अगर बैलेंस ट्रेड, अगर बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ट्रेड और ट्रेड बैलेंस अगर होगा तो इसका मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल जीरो होगा। क्लियर? नंबर 9 अगर डेफिसिट ट्रेड और सरप्लस लिख लो पहले, सरप्लस ट्रेड बैलेंस होगा, सरप्लस ट्रेड होगा, इसका मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ग्रेटर देन जीरो। नंबर 10 डेफिसिट ट्रेड। क्लियर? डेफिसिट ट्रेड, डेफिसिट ट्रेड में क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेस देन जीरो, इसका मतलब एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। क्लियर? ये जो 10 फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ये चीज़ ध्यान में रखो। क्लियर? इसके साथ और एक ठो फॉर्मूला वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो फाइनली एक बार रिपीट कर देता हूँ, बजट में तुमको दो चीज़ देखना है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू टी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी। टी एंड जी का डिफरेंस देखो, अगर टी ज़्यादा होगा
तो सरप्लस बजट होगा, टी कम होगा, जी ज़्यादा होगा तो डेफिसिट बजट होगा, अगर टी एंड जी सेम होगा, इक्वल होगा तो बैलेंस बजट होगा। उसके बाद टैक्स मल्टीप्लायर नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी नथिंग बट माइनस सी बाई 1 माइनस सी, सी मीन्स एमपीसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर नथिंग बट 1 बाई 1 माइनस सी नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी। क्लियर? ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर नथिंग बट 1 बाई 1 माइनस सी प्लस एम, सी मतलब एमपीसी, स्मॉल एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। क्लियर? और नेट एक्सपोर्ट में तुमको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डेविएशन देखना है। अगर बैलेंस ट्रेड होगा तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा। सरप्लस ट्रेड में एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होगा, इंपोर्ट वैल्यू कम होगा। डेफिसिट ट्रेड में एक्सपोर्ट वैल्यू कम होगा, इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होगा। क्लियर? इसके साथ साथ फाइनली 11 नंबर जो फॉर्मूला है ना, वो 11 नंबर जो फॉर्मूला है ना, ये मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है? ये सब तुम लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, अच्छा से ये कर लो। ठीक है? ओके। उसके बाद 11 नंबर जो फॉर्मूला है ना, वो हो गया टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू नथिंग बट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। ये जो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू वाला चीज़ है ना, ये कैपिटल टी, जो मैंने ऑलरेडी GNT में लिखा था बजट में। ठीक है? ये जो टी का वैल्यू मान लो डायरेक्टली है तुम्हारे हाथ में, लेकिन मान लो टी का वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड। अगर टी का वैल्यू डायरेक्ट नहीं है तो तुमको टी कैसे निकालना है? टी निकालने के लिए ये चीज़ हाथ में रखो। मतलब वी ऑलवेज नो कैपिटल टी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल स्मॉल टी इंटू वाई। इधर स्मॉल टी जो मैंने लिखा ना, स्मॉल टी मतलब टैक्स रेट एंड वाई मतलब इनकम। क्लियर? इनकम। ठीक है? ये जो टैक्स रेट एंड इनकम जो चीज़ है ना, इसके ऊपर बेस करके तुम ये चीज़ देख लो। ठीक है? टैक्स रेट, मान लो गवर्नमेंट टैक्स रेट लगाया 12%। किस में? तुम्हारा इनकम में। मान लो तुम्हारा इनकम कितना? 10,000, मतलब 10,000 इनकम में टैक्स रेट कितना? 12%। मतलब 10,000 रुपया में 12% तुमको टैक्स देना है। तो 10,000 का 12% जो निकलेगा ना, वही होगा गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। सो दैट 12% नथिंग बट टैक्स रेट। क्लियर? एंड वाई मीन्स इनकम, इनकम मतलब 10,000। तो फाइनली गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू नथिंग बट स्मॉल टी इंटू वाई, स्मॉल टी नथिंग बट टैक्स रेट एंड वाई मीन्स इनकम। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूला अच्छा से देख लो, इसके ऊपर तुम्हारा न्यूमेरिकल सम इजीली तुम कर सकते हो। ओके, थैंक यू।